Hello, my dear programmers. Happiness is not at the end of the journey, it's along the journey. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करने जा रहे हैं एपीएल 1 के यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के बारे में। एंड बिलीव मी दैट इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग जर्नी ये जो दो यूनिट है वो आपको सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देंगे। सो इनका लर्निंग जो है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिला देगा कि हाउ टू बिल्ड योर लॉजिक फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। So let us see like what Pune University has prescribed in this particular 2 units as a syllabus. So unit 2 is dedicated for operators and expression, जहां पे अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में, उनके एसोसिएटिविटी के बारे में, उनके प्रेसिडेंस के बारे में we are going to study. And the unit 3 is totally dedicated for control flow, जहां पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं as well as loops देखने वाले हैं। So detailings में तो चलेंगे, but let me explain some more detailings about this before moving into the individual topic of these 3 units for the discussion. So please observe. Now, when we look into this topic, I'll be mentioning this as entire दोनों unit के topics under the discussion about flow control. And we are going to have 3 subsections of this. And the first subsection I'll be discussing as operators. And second subsection is decision making. And the third subsection is loops. And in your particular syllabus of APL1, this operator is considered for unit 2 and both decision making and the loops are considered in unit 3. तो हम लोग यूनिट 2 के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, 3 के अंदर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एज वेल एज लूप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट लेट मी टेल यू, आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री का टेक्निकल टेस्ट देखो या किसी भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन का टेक्निकल टेस्ट देखो, यू विल फाइंड दैट 35 to 40% direct weightage is given for this particular topic. And that's why I said that it's the most core part of your language learning जो कि आपको हेल्प करेगा आपके लॉजिक बिल्डिंग के लिए। And under this what we are going to cover is ऑपरेटर्स में अलग अलग ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स, then logical operators, some special operators, all those things we are going to discuss one by one. But along with this, we are going to learn in operator का usage for expression evaluation. And जब expression evaluate होगा, तो definitely when multiple operators comes together, we need to understand their precedences, priority, as well as associativity of execution. तो वो चीज हम लोग ये सेकंड यूनिट में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। सो इट इज वेरी जेन्युइन एंटिटी विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड किसी प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सप्रेशंस कैसे वैल्यूएट हो गए एंड कौन कौन से ऑपरेटर्स आप यूज कर पाओगे। एंड देन वी कैन मूव इनटू द थर्ड यूनिट, जहां पे मैं इनको डिवाइड करना चाहता हूं दो सबसेक्शन में अलग अलग। वन इज डिसीजन मेकिंग एंड द अदर वन इज लूप्स। जब हम लोग डिसीजन मेकिंग का बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग गोज इन 2 डोमेन्स। One is conditional decision making and the other one is unconditional decision making. So obviously it is very clean and clear that conditional decision making based on some conditional, unconditional decision making, no condition is there. And under this we need to study 3 concepts. The first one is if else study करेंगे. Almost in every program we are going to need if else. Then we'll go on studying conditional operator नाम का एक स्पेशल ऑपरेटर है जो दोनों तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे, once in operator topic as well as once in decision making, right? But more focusedly we can study it under decision making. And the third one is very genuine one, that is switch statement. ये तीनों हम लोग डिसीजन मेकिंग के अंडर स्टडी करेंगे अंडर
कंडीशनल डिसीजन मेकिंग, एंड व्हेन वी गो टुवर्ड्स अनकंडीशनल डिसीजन मेकिंग, वहां पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं गो टू नाम का एक स्टेटमेंट. So in all, a very interesting one to take the decisions in programming. And फिर एक बढ़िया टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, that is loops. In C, there are three types of the loops supported: for, while loop, and do while loop. And we'll be starting with the properties of this, their internal detailings, their usage in the programming, and then we can go ahead in using these loops very effectively in application development. Now let's move into the detailings कि यूनिट 2 को किस वे से हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड उसके बाद we'll go into the detailings about यूनिट 3 को किस वे से कवर करेंगे. So now in unit 3 how we are going to proceed. पहले तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग लूप्स को टच करेंगे. एंड डिसीजन मेकिंग में सबसे पहला एंटिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज इफ एल्स का वर्किंग एंड इसके 4 फॉर्म्स. एंड बिलीव मी दैट दिस 4 फॉर्म्स आर गोइंग टू टेल यू लॉट मेनी फंडामेंटल्स ऑफ दिस जेन्युइन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके बाद विल बी डीलिंग विद इफ एल्स के जैसे ही काम करने वाला बट सर्टेन एडिशनल फैसिलिटीज उसके अंदर रखने वाला एंटिटी दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर. एंड देन कंडीशनल डिसीजन मेकिंग में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड इफ एल्स के मल्टीपल लैडर को रिप्लेस करने के लिए विल गो विद द स्विच स्टेटमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. आफ्टर conditional decision making with if else, conditional operator and switch, then we'll be moving into the go to statement which will be helping us to go for unconditional decision making. ये डिसीजन मेकिंग होने के बाद विल बी मूविंग इनटू द लूप्स, एंड सबसे पहले देखेंगे द नीड ऑफ द लूप्स क्या है एंड उसके प्रॉपर्टी क्या है. 3 लूप्स तो डेनिस रिची ने देखे रखे हैं, पर कौन सा लूप कब यूज करना है ये प्रोग्रामर को पता होना बहुत जरूरी है, राइट. एंड देन वर्किंग ऑफ व्हाइल एंड डू व्हाइल साथ में पढ़ेंगे बिकॉज दोनों में भी व्हाइल लूप का इंक्लूजन है. फॉलोड बाय दैट विल बी गोइंग विद वर्किंग ऑफ द फॉर लूप. इनके वेरिएशंस, इनके इंटरनल डिटेलिंग्स, इनके साथ वेरियस हैंड रन्स, ये सारा बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं. नेक्स्ट टू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप्स. बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस में, बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यू विल फाइंड द मैसिव यूज ऑफ नेस्टेड लूप्स. तो वो चीज यहां पे करेंगे, एंड सबसे एंड में स्टडी करेंगे ब्रेक एज वेल एज कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स where we'll be able to break the loops or we can continue for the next iterations. And इस यूनिट का केस स्टडी के रूप में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम करने वाले हैं, and that is simple calculator with menu driven applications. So यहां तक जितने भी फंडामेंटल्स यूज किए, चाहे वो डेटा डिक्लेरेशन के हो, चाहे वो ऑपरेटर्स के हो, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के हो, डिसीजन मेकिंग के हो, लूप्स के हो, सारे फंडामेंटल्स को यूज करके ये हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं. और मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड all the topics when they come together. So in all, a very interesting unit and very important unit. हम लोग अपना discussion, we are not going to just keep limited to this theoretical entities, but सबसे ज्यादा coding करेंगे ये unit में. And I'm very sure that if you are able to deal with unit number 2 and 3 more precisely, सारे के सारे कोड जो इस कोर्स में मैंने करके दिखाया है, वो सारे कोड अगर आप आपकी मशीन पे करके देखोगे तो यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट फॉर डीलिंग विद लॉजिक बिल्डिंग एंड सॉल्विंग एनी एप्लीकेशन प्रॉब्लम दैट यू विल कम अक्रॉस सी प्रोग्रामिंग. सो इस सेशन में इतना रखते हैं. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिटेल फ्लो इन विच वी आर गोइंग टू कंडक्ट द यूनिट नंबर 3. So happy learning. Thanks for the watching. Thank you very much.